Hello students, good morning. Hope you have understand your first exercise very well. Now we are going to start with our second exercise, exercise 1.2, in which our most important topic of the logic lesson is there, which is you have to prepare the truth table. Preparing truth table is the important topic of the lesson logic. एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से एग्जाम में पूछते ही हैं and it is yet very easy. For that again I am revising you the truth table which I have told you earlier. So let's revise the truth table. We have 5 connectives: and, or, not, if, then, if and only if. Okay, the table of and, you just need to remember the boxes which I have done with the marker pen here. First table is of and में condition याद रखनी है कि that if both the statement are true then it is true, other in all the cases it is false. Coming to your table of or may you have to remember that if both the cases, if both the statement have false truth value, then the answer is also false. In not, it is very simple, it's true. If it is true, then it is false, it becomes false. If it is false, then it becomes true. Then it is of if then may you have to remember that if both the statement if first statement is true, other is false, then your answer is false. In rest all the cases it is true. And the last one, if and only if, in that you have to remember if both the statements truth value is true, then it is true. And if both the statement truth value is false, it is again true. I have sent the pic of this truth table also. Now let's begin with how to prepare the truth table. Okay, now the first question of your exercise is construct the truth table of the following statement pattern. The pattern here written over here. You have to prepare the truth table of this statement pattern. Okay, let's begin. First of all, you see that how many variables are used here. Not variable actually. How many statements are used here? You know that we represent the statement by the form of P, Q, RNS and so on. यहाँ पे दो use किए गए हैं, that is P and Q. So you just have to create the 2 columns, that is of P and Q. 2 columns बनाए. Again P में you will have to write true true, FF, TT, FF. Q में you have to write TF, TF. ठीक है, this is done. This we have studied earlier also. Now let's come to your pattern. इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट देखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रैकेट. सो हम सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिएट करेंगे, दैट इज P implies Q. ये वाली रो हमने क्रिएट कर ली. ओके, वी आर डन विद दिस ब्रैकेट. देन आफ्टर दैट दिस ब्रैकेट इज कंजंक्शन विथ क्यू के साथ में एंड लिया है. ठीक है, तो ये पूरी हमारी सेकेंड ब्रैकेट क्रिएट हो गई. आफ्टर दैट ये सेकेंड ब्रैकेट क्या किया है, सेकेंड ब्रैकेट को P के साथ में इम्प्लाइज लिया है. ठीक है, सो वी विल राइट अवर होल ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q एंड Q. ओके, दिस ब्रैकेट गेट्स कंप्लीट. इम्प्लाइज P. सबसे पहले मैंने अंदर वाली ब्रैकेट ली, फिर उसके साथ में एंड Q लिया, देन ये पूरी ब्रैकेट क्रिएट हो जाने के बाद में इम्प्लाइज P लिया. ऐसे मैंने पूरे कॉलम्स बना लिए. ओके, नाउ लेट्स बिगिन टू क्रिएट द ट्रूथ टेबल. P और Q का तो हमने लिख लिया, ये हर एग्जाम्पल में सेम रहेगा. ओके, देन P इम्प्लाइज Q. फॉर इम्प्लाइज यू नो द ट्रूथ टेबल. इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, देन इट इज F. फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन इट इज F. Other all the cases are true. Okay, first true, second false, no it is not, so it is true. First true, second false, yes it is, so इसका आंसर F हो गया. ठीक है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है तो T. फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है तो T. ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन मैच हुई थी हमारी इम्प्लाइज की टेबल की, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल तो F और बाकी सारे ट्री. ये हमारी बाकी सारे ट्रू, सॉरी. तो ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट प्रिपेयर हो गई. ठीक है, देन ये फर्स्ट ब्रैकेट जो हमने प्रिपेयर की, इसको हमको Q के साथ में कंजंक्शन लेना है, दैट मीन्स एंड लेना है. दैट मीन्स अब आप
कौन से ब्रैकेट देखोगे, अब आप ये वाला देखोगे एंड आप क्यू देखोगे। आपको इन दोनों के बीच में आपको कंजंक्शन अप्लाई करना है, दैट मीन्स एंड अप्लाई करना है इनके बीच में। ओके, अदर सारे कॉलम्स हम निग्लेक्ट करेंगे, अभी हम इसी को देखेंगे। ठीक है, तो एंड के टेबल में क्या होता है, एंड की कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट वाली, कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि दोनों ट्रू कहाँ है। यस, ये दोनों ट्रू है पहले रो में, तो ये ट्रू, ये दोनों ट्रू नहीं है। ओके, ये दोनों ट्रू है, सो यहाँ पे भी ट्रू, ये दोनों ट्रू नहीं है, तो बाकी सारी केसेस में क्या आ गया आपका, फॉल्स फॉल्स। सिर्फ आपका जहाँ पे ट्रू ट्रू है वहाँ पे हमने ट्रू लिया। ठीक है, दैट मीन्स अब हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट भी जो है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का भी स्टेटमेंट पैटर्न हमारा प्रिपेयर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो स्टेटमेंट पैटर्न था इसको इम्प्लाइज लेना है पी के साथ में, इम्प्लाइज पी। दैट मीन्स अब आप क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे, ठीक है, और पी देखोगे, ये देखोगे जिनको मैंने स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर बॉक्सेस, आप वो देखोगे। आपको फर्स्ट कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, ये दो कॉलम देखना है। और प्लस उसमें क्या है आपका, दिस इम्प्लाइज पी, दिस ब्रैकेट इम्प्लाइज पी है, तो आपको पहले ब्रैकेट देखनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट यू विल हैव टू सी दिस, बाद में आपको पी देखना पड़ेगा, मीन्स योर सेकेंड कॉलम विल बी दिस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस दिखना है, इससे आंसर चेंज हो सकता है, तो पे अटेंशन ऑन दैट। पी फर्स्ट और ये आप बाद में देखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। आप अपने पैटर्न को देखिए, आपका पैटर्न है कि ब्रैकेट इम्प्लाइज पी है, तो आप पहले ब्रैकेट का देखोगे, बाद में इम्प्लाइज पी देखोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इम्प्लाइज के ट्रूथ टेबल में क्या था, इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल था कि फर्स्ट टी सेकेंड एफ होना चाहिए, तो एफ और बाकी सारे ट्रू है, तो बस आपको एक ही कंडीशन याद रखनी है, बाकी सारे इसमें तो टी टी है, उस पर अटेंशन देना भी नहीं है। ओके, पहला ट्रू चाहिए मुझे, सेकेंड फॉल्स चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मैं पहला ट्रू देखूंगी, पहला ट्रू कहाँ दिख रहा है, ये दो केसेस में दिख रहा है पहला ट्रू। ठीक है, इधर आ जाते हैं, सेकेंड फॉल्स, पहला ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू सेकेंड फॉल्स, यस इट इज है, तो यहीं पे मेरा आंसर एफ आएगा। पहला ट्रू सेकेंड फॉल्स में एफ, और बाकी सब कंडीशन में तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली बाकी सारे आपके क्या हो गए, टी 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 हो गए। सो ये जो आपको लास्ट कॉलम में मिलता है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो ये ट्रूथ टेबल, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। एक ना एक क्वेश्चन ट्रूथ टेबल का डेफिनेटली एग्जाम में होता ही है, कभी 2 मार्क के लिए आता है, कभी 3 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आते हैं ये क्वेश्चंस। Okay students, now come to your next example. It is P and negation of Q double implies P implies Q. ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है आपको। अगेन मैं वही सेम चीज़ रिपीट करूँगी कि आप सबसे पहले देखोगे कि कितने वेरिएबल्स यूज़ किए, दैट मीन्स कितने स्टेटमेंट यूज़ किए हुए। तो P और Q दो ही है मेरे पास में, सो मैं लिखूँगी P एंड देन मैं लिखूँगी Q। ठीक है, इस क्वेश्चन में निगेशन भी यूज़ किया है, सो बिफोर सीइंग टू द ब्रैकेट आप सबसे पहले निगेशन वाला कॉलम क्रिएट कर लोगे। मतलब आप एक ही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे निगेशन क्यू, तो मैं सबसे पहले वो कॉलम क्रिएट कर लूँगी, दैट इज निगेशन क्यू। निगेशन पी नहीं है, सो नो नीड टू राइट दैट। ठीक है, आफ्टर राइटिंग निगेशन क्यू इतना मैंने क्रिएट कर लिया, मतलब इतना मेरे पास आ गया कॉलम में। ओके, अब मैं ब्रैकेट क्रिएट करूँगी, तो ब्रैकेट कैसे हो जाएगी, पी एंड निगेशन क्यू, ये तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं पी एंड ये निगेशन क्यू ले लूँगी। ठीक है, पी एंड निगेशन क्यू, दिस इज माई फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट है तो डायरेक्ट ही ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा आपका P इम्प्लाइज Q, ये ले लोगे आप। मतलब दोनों ब्रैकेट क्रिएट हो गई आपके पास, ये भी हो गई आपके पास, ये भी हो गई, और आपको इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या इम्प्लाई करना है, आपको इम्प्लाई करना है डबल इम्प्लीकेशन। सो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो मैं नंबर्स डाल सकती हूँ। इसको मैं लूँगी नंबर 1, इसको मैं लूँगी नंबर 2, फर्स्ट ब्रैकेट नंबर 1 की, सेकेंड ब्रैकेट नंबर 2 की, और यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 डबल इम्प्लाइज 2। नंबर्स यूज़ कर सकते हो आप अगर आपके पास में आंसर शीट में ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं तो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 लिया है, ये भी एक वे है, या फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 देना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 ऐसा अगर मैं दे दूंगी तो मैं 4 डबल इम्प्लाइज 5 ऐसा पे लिख सकती थी। नंबरिंग का कुछ नहीं होता है, आप अपने मर्जी से कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू योर ट्रूथ टेबल, कैसे बनाते हैं, द सेम वे। आप पहले P के लिए लिखोगे टी टी एफ एफ, Q के लिए लिखोगे आप टी एफ टी एफ, ये तो सब में सेम होता है।
फिर आपको निगेशन क्यू लिखना है, और निगेशन के लिए आपको पता है कि टी है तो एफ, एफ है तो टी, ये आपके निगेशन का रूल है, ठीक है। सो आपको किसका निगेशन निकालना है, आपको निकालना है निगेशन क्यू। तो आप सिर्फ क्यू के ही कॉलम को देखोगे, ठीक है। तो टी है तो आप एफ बनाओगे, एफ है तो आप टी बनाओगे, टी है तो आप एफ बनाओगे, एफ है तो आप टी बनाओगे। ये मैंने क्यू का पूरा क्यू के कॉलम का निगेशन बना दिया, ठीक है, डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे पी को देखना है एंड किसको देखना है, मुझे निगेशन क्यू को। पी एंड निगेशन क्यू ये दोनों कॉलम्स देखने हैं, मतलब मुझे नंबर 1 वाला देखना है और नंबर 3 वाला देखना है, फर्स्ट और थर्ड ये मुझे देखना है, पी एंड निगेशन क्यू। और इन दोनों कॉलम्स में मुझे किसका रूल अप्लाई करना है, मुझे रूल अप्लाई करना है एंड का। और आई थिंक अब तक आप लोगों ने ट्रूथ टेबल याद कर लिया होगा कि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और बाकी सारे एफ, ये आता है आपका एंड का रूल। तो बस चेक करना है आपको कि दोनों ट्रू आपको कहाँ दिख रहे हैं। यहाँ दोनों ट्रू है, नहीं। यहाँ दोनों ट्रू है, यस है, तो यहाँ पे आप आंसर टी लिखोगे। यहाँ दोनों ट्रू है, नहीं। यहाँ दोनों ट्रू है, नहीं। बाकी कहीं पर भी आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो बाकी हर जगह आप डालोगे एफ 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 एफ, ठीक है। ये मुझे ज़रा सिंपल लगता है कि पहले हम लोग सारे ट्री वाले फाइंड कर ले, जो मेन कंडीशन है वो फाइंड कर ले, और बाकी सारे अदर इसमें हम एफ 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 टी 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 पुट ऑन करते जाए करके। नाउ सेकेंड कॉलम, अभी मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है P इम्प्लाइज Q का, मतलब मुझे कॉलम देखना पड़ेगा P और Q, P और Q फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो कॉलम में देखूंगी और उसमें मैं कंडीशन अप्लाई करूंगी इम्प्लाइज की। फिर से मैं इम्प्लाइज की कंडीशन आपको बताती हूँ कि इम्प्लाइज की कंडीशन में पहला ट्रू चाहिए, बाद में F चाहिए, तो आपको F मिलता है, और बाकी सारे ट्रू मिलते हैं, T मिलते हैं आपको, ठीक है। सो पहला T और दूसरा F, पहला T दूसरा F, यस, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। पहला T दूसरा F नहीं है, पहला T दूसरा F नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ही केस में है, पहला T दूसरा F, तो मैं इसमें लिखूंगी F, और बाकी सारे इसमें मेरा आ जाएगा T T T T T। सॉरी, सिर्फ सेकेंड कंडीशन में आपका अप्लाई हो रहा था, बाकी सब में आपका आ गया T T T T T। तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे क्रिएट हो गए, फर्स्ट वाला भी क्रिएट हो गया, सेकंड ब्रैकेट भी क्रिएट हो गया। अब मुझे ये दोनों ब्रैकेट के बीच में इम्प्लाई करना है डबल इम्प्लीकेशन वाले टेबल की कंडीशन, ठीक है। सो डबल इम्प्लीकेशन वाला फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, और दोनों फॉल्स है तभी भी ट्रू, ठीक है। तो आप चेक कर लो कि दोनों ट्रू कहाँ है या दोनों फॉल्स कहाँ है। यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है, और फॉल्स भी नहीं है, मतलब कहीं पर भी नहीं है। सो आपका पूरा हो जाएगा कॉलम एफ 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 एफ, क्योंकि ट्रू वाली कंडीशन हमको कहीं पर भी नहीं मिली। सो इट इज़ एफ 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 एफ। तो ये हो गया हमारा लास्ट कॉलम, जो कि हमारा होता है आंसर। Now let's see your third example, which is पैटर्न है आपका P and Q डबल इम्प्लाइज Q और R। ये आपके पास में स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, इसका आपको फिर से ट्रूथ टेबल बनाना है, ओके। अब मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ P Q एंड R। अभी तक हमने 3 वाला एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया है, तो इसमें आपको करना क्या है, सी लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब आपको 2 के पावर्स में वेरिएबल का कैलकुलेशन लेना रहता है, जैसे कि P और Q मेरे पास में 2 ही वेरिएबल्स थे, ओनली 2 वेरिएबल्स थे मेरे पास में, तो 2 का पावर मैं उसमें अप्लाई करूंगी। 2 का पावर 2 तो 4 होता है, तो हमने 4 कॉलम्स बनाए थे, T T F F, ऐसे 4 कॉलम्स बन गए थे। अभी आपके पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ किए, तो आप 2 का पावर 3 यूज़ करोगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है आपके। 2 का पावर 3 कितना होता है, इट इज़ 8। तो मैं कितने 4 कॉलम, मतलब सॉरी, मैं 8 रोज बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइकवाइज, ठीक है। अगर मेरे पास में 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स मतलब P Q R S, अगर 4 वेरिएबल्स है तो मैं 2 का पावर 4 लूँगी, तो 2 का पावर 4 16 हो जाता है, तो मैं 16 रोज बनाऊंगी। ऐसे कैलकुलेशन चलता है, इसीलिए आपको वेरिएबल्स देखने पड़ते हैं सो दैट आपको रोज कितने लेने हैं ये पता चल जाए, ठीक है। तो P Q R 3 वेरिएबल थे, तो मैंने P Q R 3 वेरिएबल ले लोगे आप। अभी इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये ध्यान दो कि आप कैसे T F लिखोगे।
पिछले प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने 2T 2F TF TF ऐसे करके बना लिया था जब आपके पास में सिर्फ P और Q थे। अभी हमारे पास में P Q R 3 है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, मुझे आपको पता है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स है तो आपको 8 रोज बनाने हैं। ठीक है, सो 8 रोज का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो आप क्या करोगे, 8 का आधा कर लो 4। ठीक है, सो आप पहले 4 बार ट्रू लिखोगे और 4 बार फॉल्स लिखोगे। ठीक है, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। फिर उसके बाद आप 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स हो गए तो 4 का और हाफ कर लो, मतलब 4 का आधा करोगे तो 2 मिलेगा आपको 2। तो अब आप क्या करोगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ऐसे हो गया। ठीक है, अब 2 का आधा करेंगे तो ऑब्वियसली 1 मिल रहा है अपने को, तो आर का हो गया 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स 1 बार ट्रू फॉल्स TF ऐसे। देखो 3 वेरिएबल्स थे तो 3 वेरिएबल्स मतलब 2 का पावर 3, यानी आपको 8 रोज बनाने थे, तो मैंने 8 रोज का हाफ करके PQR में लिखा है। पहले 8 का हाफ किया तो 4, तो 4 बार T 4 बार F, बाद में 4 का हाफ किया तो 2 2 बार T 2 बार F, फिर बाद में 2 का हाफ किया तो 1, तो 1 बार T 1 बार F, ऐसे चलेगा। ठीक है, अगर चौथा वेरिएबल आता है हमारे पास में, फोर्थ वेरिएबल PQR S भी आता है, तो S यानी आपको कितने रोज बनाने पड़ेंगे, फिर 4 वेरिएबल्स हो गए तो 2 का पावर 4 यानी 16 बनाने पड़ेंगे आपको, 16 रोज बनाओगे आप। तो 16 रोज आप लिखोगे कैसे, 16 में आप 16 का हाफ कर लोगे 8, तो आप पहले 8 बार T लिखोगे और 8 बार F लिखोगे P में। Q में आप क्या करोगे, 8 का हाफ करोगे दैट इज 4, तो 4 बार T 4 बार F 4 बार T 4 बार F। फिर आप R में आओगे तो आप क्या करोगे, 4 का हाफ करोगे 2, तो 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F। फिर आप S में जाओगे तो आप और 2 का हाफ करोगे, मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 1 बार T F T F T F T F, ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है अगर ज़्यादा वेरिएबल्स है तो। ठीक है, बट अभी ये एग्जाम्पल में आपके पास में सिर्फ 3 वेरिएबल्स है, तो हम 3 वेरिएबल्स को लेके हमारा टेबल प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने PQR ये बना लिया। ठीक है, इसमें कोई भी निगेशन वाला यूज़ नहीं किया है, तो हम निगेशन का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली आपके पास में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, सिंपल वाला पैटर्न है ये, तो हम सीधा सीधा बना लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट P एंड Q की है वो बना लिया, सेकेंड ब्रैकेट Q और R की है वो बना ली। ये मेरी फर्स्ट ब्रैकेट है, ये मेरी सेकेंड ब्रैकेट है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया, और मुझे फिर 1 डबल इम्प्लाइज 2 लेना है, मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में डबल इम्प्लाइज की साइन है तो मैंने वो दे दी। फाइन, लेट्स मूव ऑन बाय प्रिपेयरिंग अवर टेबल। P and Q है, P and Q, that means I have to look after the first and second column. फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को मैं देखूंगी, एंड इन दैट ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ एंड टेबल। एंड गाइज यू रिमेंबर दैट एंड में if both are T then the answer is T, and in other all the condition it is F, so you have to search for both T। दोनों T कहाँ दिखाई दे रहे, you have to search for that। दोनों T है, yes, so it is T। दोनों T है, yes it is T। अदर बाकी कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों T, सर्च फॉर दैट, नहीं कहीं और मुझे कोई T नहीं दिखाई दे रहा है, सो अदर सारे इसमें F F F F F F मैं लिख दूंगी डायरेक्टली। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम Q और R में you will have to look at the Q and the R, ये कॉलम देखना पड़ेगा, and in that you will have to apply the condition of OR, and if you remember students, the condition of OR is if both are F then it is F, if both are F then it is F, तो search for both the F। दोनों F है, no, दोनों F है, no, दोनों F है, no, दोनों F है, yes है F, तो यहाँ पे आएगा आपका F। ठीक है, दोनों F है, नो, दोनों F है, नो, दोनों F है, नो, दोनों F है, यस, तो यहाँ पे आएगा F, और बाकी सारे इसमें आपका आएगा T T T T T T। ओके, नाउ द लास्ट कॉलम विच इज़ अवर आंसर कॉलम, सो इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रैकेट के बीच में डबल इम्प्लाइज अप्लाई करना है। सो डबल इम्प्लाइज की कंडीशन मैं याद दिला देती हूँ, मैंने आपको इस एग्जाम्पल में टेबल नहीं दिखाया है, सो दैट आप टेबल याद करो या फिर खुद से आप लोग देखो कंडीशंस को, बिना टेबल के आप लोग ट्रूथ टेबल प्रिपेयर नहीं कर पाओगे।
ओके। तो डबल इम्प्लाइज की ये कंडीशन होती है कि अगर दोनों टी है तो टी, और दोनों एफ है तो भी टी, और बाकी सारी केसेस में होता है एफ एफ एफ। तो मैं ये देखूंगी कि दोनों टी कहाँ पे दिख रहे हैं मुझे या दोनों एफ कहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। सर्च करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में, दोनों टी दिख रहे हैं, यस तो मैं टी डाल दूंगी। दोनों टी दिख रहे हैं, यस तो मैं टी डालूंगी। दोनों एफ नहीं है, दोनों एफ है, यस तो मैं अगेन यहाँ पर भी टी डालूंगी। दोनों टी दोनों एफ कुछ भी नहीं है, दोनों टी दोनों एफ कुछ नहीं है, दोनों टी दोनों एफ कुछ नहीं है। दोनों एफ है तो मैं अगेन यहाँ पे टी डालूंगी। सर्च कर लिया मैंने, सारी कंडीशन अप्लाई कर दी, और बाकी सारे इसमें अभी मैं एफ 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 डाल दूंगी। सो ये बन गया मेरा ट्रूथ टेबल जब आपके पास में 3 वेरिएबल्स देकर है।